Hello student, myself Amol Mankar, lecturer, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Today we learn about the command line based and GUI based operating system. This is the last topic from unit number 1, overview of an operating system. This is the learning outcome. Understand the different command line based operating system and GUI based operating system. This is the prerequisite for the today's lecture. Different types of operating system as we learned in the previous lecture. Command line based operating system. Following are the command line based operating system. There are two command line based operating system. First one is DOS and second one is Unix. Now we will see each operating system in detail. DOS, MS-DOS is a Microsoft Disk operating system. It is a single user, non-graphical, line-oriented command operating system. It has a simple interface, but the interface is less user-friendly. The different version of DOS available. यहाँ पे अगर मैं DOS ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो ये कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. मींस यहाँ पे हम जो भी काम कंप्यूटर से कराना चाहते थे उसके लिए हमको यहाँ पे स्पेशलाइज कमांड लिखनी पड़ रही थी. इसलिए इट इज अ सिंगल एंड नॉन ग्राफिकल लाइन ओरिएंटेड कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसको बोलते हैं. यहाँ पे इट हैज अ सिंपल इंटरफेस बट द इंटरफेस इज लेस यूजर फ्रेंडली. एकदम सिंपल सा इंटरफेस यहाँ पे DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में है और यहाँ पे अगर मैं DOS की बात करूं तो ये लेस यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसको बोलेंगे. बट इसके बाद में भी इसके डिफरेंट वर्जन ऑफ DOS अवेलेबल, इसके बहुत सारे वर्जन अवेलेबल रहेंगे. MS-DOS were the most popular operating system at the time of the development. It was not thought that DOS will become so popular because DOS was based on the very simple structure. जब DOS ऑपरेटिंग सिस्टम बन रही थी तो इतना नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा पॉपुलर होगी. बट जैसे ही ये सिस्टम बनी तो उसके बाद में इसका जो यूज है उतना ज्यादा बढ़ चुका है. और अगर मैं DOS की बात करूं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है. जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर हमको पढ़ने हैं तो वहां पे फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर. तो अगर मैं DOS की बात करूं तो DOS हैविंग द सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. The purpose behind the DOS was to provide the most functionality and use the least space. कम स्पेस में ज्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में की गई थी. दिस इज द रीजन व्हाई दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट डिवाइड इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स. इसी रीजन की वजह से यहाँ पे DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड नहीं किया गया था. दिस डायग्राम शोज the DOS operating system. There are 4 layers: application program, residential system program, MS device driver, ROM bias device driver. This is a simple structure of DOS. Application program, through the application program user gives the command. Residential system program and MS device driver execute this command through the ROM bias device driver. That means here the user enters the command and here the system, DOS operating system, process on the command received by the user. Now next one is Unix. It was in early 1970 Bell Laboratory scientists developed well-known operating system called Unix. Ken Thompson, a Bell lab researchers, was looking to do something interesting. 1970 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया था और ये बनाया था केन थॉमसन ने. इसका पर्पस ये था कि DOS से अलग कुछ हमें यहाँ पे बनाना है, तो इन्होंने यहाँ पे डिजाइन किया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. द कर्नल इन द यूनिक्स इज लाइक अ हार्ट इन द ह्यूमन बॉडी. द कर्नल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ इंटरफेसेस एंड डिवाइस ड्राइवर. These interfaces and device driver were added on need basis, due to which the Unix has evolved over the years. The traditional view of Unix is shown in a figure. This is the
फिगर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे ये बोला हुआ है कि कर्नल इज अ हार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कर्नल इज डिवाइड इनटू सीरीज ऑफ इंटरफेसेस एंड डिवाइस ड्राइवर। यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम, हियर इज अ कर्नल एंड कर्नल इज डिवाइड इनटू सीरीज ऑफ इंटरफेसेस एंड device driver. These interfaces and device driver were added on the need basis due to which the Unix has evolved over the years. इस यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि जो इंटरफेसेस और डिवाइस ड्राइवर्स है ये हमने एज पर द रिक्वायरमेंट यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ड्यू टू विच, और इसकी वजह से ये जो यूनिक्स का कंसेप्ट है ये बहुत सालों से चलते आया हुआ है। ये डायग्राम आपको शो कर रहे हैं ट्रेडिशनल व्यू ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को समझेंगे तो हियर इज द यूजर एंड हियर इज द कर्नल, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यूजर गिव्स द कमांड टू द सिस्टम। आफ्टर गिविंग द कमांड बाय द यूजर, शेल एंड कमांड interpreters and compiler library of the system receive that command, process it, and after that here is a system call. सिस्टम कॉल ये हमें आगे की यूनिट में पढ़ना है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं सिस्टम कॉल मतलब क्या है। तो सिस्टम कॉल इज अ मीडिएटर बिटवीन प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेनेवर प्रोसेस वांट समथिंग फॉर द एग्जीक्यूशन, देन इट रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द रिक्वायर्ड डेटा, और जो रिक्वेस्ट यहाँ पे प्रोसेस करने वाला है वो होगा थ्रू द सिस्टम कॉल इंटरफेस। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीडिएटर टू द कर्नल, दैट मीन्स system call is a mediator between process and operating system. These are the different system calls, and here is the kernel, and kernel is a mediator to the hardware and user, or hardware or and process, and here is all are the hardware. Now just above the hardware and below the system call interface all are the kernel. Just above the hardware and below the system call all are the kernel. So इस डायग्राम को हम ऐसे समझेंगे, यूजर यहाँ पे कमांड देगा, वो कमांड को यहाँ पे रिसीव किया जाएगा, और आफ्टर दैट सिस्टम कॉल अपना काम करेगा, उस प्रोसेस को जो भी रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे सिस्टम कॉल के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को अलाउ करके देगा, और लास्ट में विद द हार्डवेयर वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे मैं सिंपल स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, तो डॉस और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल स्ट्रक्चर ही यूज किया गया था। यूनिक्स इज बेसिकली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, वन इज कर्नल एंड सेकंड इज अ सिस्टम प्रोग्राम। देयर इज नो स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ कर्नल। यहाँ पे कर्नल की कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, एवरीथिंग विच इज बिलो द सिस्टम कॉल एंड अबाउ द फिजिकल हार्डवेयर इज द कर्नल। जो भी चीज आपको सिस्टम कॉल के नीचे दिख रही है, सिस्टम कॉल के नीचे दिख रही है, एंड और जो कर्नल के ऊपर दिख रही है, सॉरी हार्डवेयर के ऊपर दिख रही है, दीज ऑल आर द कर्नल। दीज आर द हार्डवेयर, टर्मिनल कंट्रोलर, टर्मिनल डिवाइस कंट्रोलर, memory controller. These are the hardware. Just above the hardware and below the system call all are the kernel. इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि कर्नल की यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है। The kernel provides the main function which are performed by the operating system itself. कर्नल प्रोवाइड कर रहा है मेन फंक्शन जो जिसके वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम हमको काम करा के दे रहा है। Some of the function are the file system, CPU scheduling, memory management and other operating system functions through the system call. System call हम प्रोसेस को अगर किसी चीज की जरूरत है तो प्रोसेस डायरेक्टली उस चीज को यूज नहीं कर सकता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वो चीज अवेलेबल करा के देगी, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑल द प्रोसेसेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। और जैसे हमको पता है कि आज की जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एग्जीक्यूट कर रही है मोर देन वन प्रोसेस एट अ टाइम। दैट्स व्हाई इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज ऑल द प्रोसेसेस। दैट्स व्हाई no processes take any request, take any data from the operating system without intimating him. So the concept of system call is to
give the permission to the process for accessing the particular data or particular resources. So यहाँ पे सिस्टम कॉल का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में रहने वाला है, कंप्यूटर सिस्टम में रहने वाला है. This is the DOS and Unix operating system. This is the DOS operating system. This is command line based operating system, and this is the Unix operating system. This is again a command line operating system. Here on the black screen हम यहाँ पे command लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा DOS, और यहाँ पे अगर मैं Unix की बात करूँ तो यहाँ पे हम टर्मिनल में लिखते हैं command. So this is the simple view of DOS and Unix operating system. Next one is GUI based operating system. GUI based operating system दो है, Windows and Linux. तो Windows is a series of operating system, computer operating system developed by the Microsoft for the personal desktop device or the computer PC. जो हम हमारे सिस्टम पे यूज करते हैं वो रहता है Windows operating system, जिसको डिजाइन किया हुआ है Microsoft ने for the personal desktop and device or the computer. Each operating system comes with the graphical user interface with a desktop which allows the user to view all the files, video, etc. The first version of Windows operating system released in 1985, which is a simple GUI and extension of existing disk operating system is MS-DOS. यहाँ पे अगर मैं Windows की बात करूँ तो ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया था और विद द फुल ऑफ GUI, और ये आया था 1985 में, और आफ्टर दैट वन बाय वन इसमें और एडवांटेजेस और फीचर्स ऐड होते गए. नेक्स्ट वन इज लिनक्स. लिनक्स बनाया गया था 1991 में. इट इज अ सॉफ्टवेयर विच साइट्स अंडरनेथ ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर. यूजर कैन मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग कोड एंड क्रिएट द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट एज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ये 1991 में बनाया गया था, और जो यूनिक्स था उसमें और उसको अपडेट करके GUI डाल के यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था. Linux comes with a graphical user interface with some necessary software which are used on a daily basis. That means जैसा मैंने आपको बोला हुआ है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI ऐड करके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया था, तो इसमें और एक चीज देखा था कि some necessary software which are used on a daily basis. जो necessary softwares होते हैं वो हमने लिनक्स में ऐड कर दिए थे. This is a simple view of Windows and Linux operating system. This is a Windows operating system and this is a Linux operating system. So यहाँ पे आप देख सकते हो Google Chrome आपको दिख रहा है. These are the basic software जो Linux में डाले गए थे. These are the MSBT question. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर में पूछे जा सकते हैं. लिस्ट कमांड बेस्ड एंड GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. एक्सप्लेन कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. समरी ऑफ लर्निंग हमने आज देखा कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 2 इन ऑपरेटिंग सिस्टम. थैंक यू.